How to write an effective essay or effective mains answer writing? Exactly not that way in which you have written essays in 10th class or 12th class or even graduation. No. This is IAS or PCS examination. Public service commissions are trying to find out a future officer in you. What is the difference between a commoner and an officer? A common man and officer. What is the difference? Please write in comments whatever I am going to say. Single sentence. Please write in comments. The difference between common man and a government officer is that, यहाँ से आपको लिखना है कमेंट्स में जो मैं बोलूँगा. Common man, a common man complains. A common man complains and an officer solves. बस एक सामान्य व्यक्ति शिकायत करता है और अधिकारी उस शिकायत को निवारण करता है, उस शिकायत का निवारण करता है. यही डिफरेंस है. तो निबंध लेखन में मेरा ये सूत्र याद रखिए. छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ. निबंध लेखन में आप शिकायती एटीट्यूड ना अपनाएं. प्लीज़ डू नॉट एडॉप्ट द कंप्लेनिंग एटीट्यूड. सरकार ये नहीं करती, सरकार वो नहीं करती, पिछली सरकारों ने ये नहीं किया, देश को बेच के खा गई, ये किया वो किया. You are not a political person, you are not that IT cell person, or you are not that Bhakt type person. Remember, you have to be obedient employee of any government. Although I don't see possibility of any other party in near future, because no one deserves, I know. But still, you have to serve that government which is giving you salary, and you have to serve that public which is giving tax to the government. You get your salary from the tax given by the common people. So it is natural that common man complains and the officer solves. You are government servant. You are going to be government servant. No. You are going to be public servant. Public Service Commission appoints you to serve the people. This is the government of the people, by the people, for the people. So you are going to serve the people. People are your masters. They are your employers. Sovereignty of India lies in people. So you will serve people, people will make complaint and you will solve it. So please write an essay or mains answer in such a way that you should give a solution. In my paid classes, I have given thousands of solutions of thousands of problems. This is the difference between me and other teachers. You cannot find a proper book of essays because all the books are useless. All the books on essays are useless because they don't give a solution. Generally, you are thinking about a book written by an IAS officer of Hindi medium. Certainly, he is very brilliant, but you can read the book, and if you find solution, I always say that all the life coaches, life mentors like Sadhguru or Acharya Prashant, they are not giving solution. They are simply discussing your problem, exaggerating it. Sadhguru is laughing at your problem. He is mocking at your problem. Mimicry करते हैं आपकी, but they are not giving solution. Acharya Prashant is also not giving solutions. पर्सनली किसी को मुझे
ऑफेंड नहीं करना है, लेकिन सॉल्यूशन तो दीजिए. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू गिव सॉल्यूशन इफ़ यू आर एक्स IIM और एक्स सिविल सर्वेंट, ऑल्दो यू हैव नेवर टोल्ड दैट विच वॉज योर पोस्ट, what was your post. If you were civil servant, then there is a post of a civil servant, so please tell. But they are never telling. You know, रहस्य के पर्दे में सब कुछ अच्छा लगता है. तो मैं आप लोगों को सावधान ये करता हूं कि हर जगह सॉल्यूशन को फाइंड आउट करिए. इफ समवन गिव्स यू सॉल्यूशन, देन यू शुड वॉच हिम और you should listen to him. And if someone is not giving you solution, or they are giving solutions like know thyself, know yourself, sit in a peaceful mood and know yourself, this is not the solution. Bhaiya re, give proper solution, otherwise I am going. I will not watch your videos. This is the practical solution I am giving you. That if you write some essay, then in that essay, if you discuss a social problem like corruption, like casteism, like Dahej dowry system, or anything like that, then give solution. And don't give institutional solutions that government should make some institutions, some commissions for investigation and government should इस तरह की चीज़ें नहीं. सरकार को ये अरे सरकार नहीं भैया, अधिकारी तो तुम बन रहे हो, तुम क्या करोगे, बहुत तनख्वाह तुम ले रहे हो, सरकार ने तुम्हें रखा है चौकीदार, तुम क्या करोगे महानुभाव. दहेज प्रथा के ऊपर निबंध लिखा है लंबा चौड़ा, इस समाज का कोड़ है, रोग है, नासूर है, कैंसर है, ये है, वो है. बैल की तरह गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा. आप कलेक्टर बन के दहेज प्रथा दूर करने के लिए क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर ही आप कुछ कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर कुछ नहीं कर सकते. You are helpless in the matters of policy making because you are not the policy maker. Policy makers are, who are policy makers? Politicians. The parliament, विधान सभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, etc. But one thing you can do, you can send continuous recommendations, submissions. आप सरकार को सबमिशन कर सकते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से, SSP, डिप्टी SP की हैसियत से, टैक्सेशन ऑफिसर की हैसियत से, तमाम अपने विभाग से संबंधित आप रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि यदि ऐसा किया जाए, मान्यवर मेरा ये निवेदन है, यदि ऐसा किया जाए तो कुछ हो सकता है. कोई तो सुनेगा. हो सकता है आपको श्रेय न मिले, मुझे नहीं मिला, मैंने कुछ सजेशंस दिए थे, मान लिए गए, लेकिन मुझे श्रेय नहीं मिला, श्रेय सीनियर्स ले गए, कोई बात नहीं, चलता है. इस शहर में हम किससे मिले, जंगल तेरी, बस्ती तेरी, कूचा तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा तो है. तो हमें सुझाव तो देना चाहिए, कभी तो हम भी सीनियर होंगे. निबंधों में आप निबंध इस तरह लिखेंगे जैसे कि आप अधिकारी हो गए हैं. अब ये कौन बताएगा आपको, कौन सा अध्यापक बताएगा कि जब आप अधिकारी हो गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं? वो सरकारी भाषा, वो सरकारी चैनल्स, सरकारी अधिकारी क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन कैसे भेजी जाती हैं, प्रॉपर चैनल से कैसे जाता है, उसका प्रॉपर चैनल होता क्या है. स्टेक होल्डर्स फॉर एग्जांपल हम शब्द यूज़ करें तो स्टेक होल्डर होता क्या है, हम कैसे यूज़ करें. लोकल सेल्फ गवर्नेंस की जगह पर अगर हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को से हम सोशल कैपिटल जनरेशन करें, तो ये सब कहते हैं सरकारी भाषा है. ये सरकारी भाषा कौन समझाएगा? जो कभी एग्ज़ाम पास नहीं किया वो टीचर तो नहीं समझा पाएगा, मैं समझा पाऊँगा. मैंने तो फ्री में भी बहुत समझा है. कम से कम एक फाउंडेशन बैच तो ज्वाइन करिए तो आपको पता लगे कि हाँ ऐसी होती है गवर्नमेंट लैंग्वेज. नहीं तो फ़ायदा क्या, आप अपने से तमाम सारी मेहनत करके रगड़ के जैसे तैसे, अगर मान लो सपोज प्री पास हो भी गए तो मेंस धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि मेंस बहुत कुछ रिक्वायर करता है और आप एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते.
करके देखें तो आपको पता चलेगा कि एक बैच में आपको क्या मिलने वाला है और क्या मिलता है। तब आपको लगेगा कि सारे बैच कितने सार्थक बैच होंगे। ये करना चाहिए आपको, क्योंकि एक सेट पैटर्न है। उस सेट पैटर्न पर अगर आप चाहें कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करना चाहते हैं, कारखाना डालना चाहते हैं, और आप लेथ मशीन लगाएंगे नहीं। एक बार मैंने पूछा था सीएनसी क्या होता है, आपको प्रिसीजन मशीनिंग करनी है और सीएनसी मशीन आप लगाना नहीं चाहते हैं, तो कैसे कर लेंगे? तो वही सीएनसी मशीनिंग मैं कराता हूँ, वो मशीन मैं लगाता हूँ आपके दिमाग में, कि बारीक से बारीक प्रिसीजन थिंकिंग आपको सिखाता हूँ। अरे उसके लिए तो एक सिंपल सा बैच है, सबसे सस्ता, एक्सेल बैच जो है, आप एक्सेल बैच ले सकते हैं। देखिए चिंतन कितना डेवलप होता है, आंसर राइटिंग कितनी डेवलप होती है। ये बात मेरे पेड क्लास के छात्र जानते हैं। नया बैच लॉन्च होते ही उसको तुरंत हिट करा देते हैं। जो किसी भी और बैच में होता है तुरंत मेरा नया बैच लेता है। थैंक यू वेरी मच। निबंध लिखें तो इस तरह लिखें। हिंट मैंने दे दिया है, आप कैसे करेंगे ये आप जानें।